session especially not only for coaches but also for the people whom you are helping, you're transforming their lives ताकि उनको भी knowledge वो भी empower. So it's very important to invite all your clients so that they get empowered. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. So welcome to Healthify Pro Inner Circle Call. आप सभी का Inner Circle Call में दिल से स्वागत है. I am Jyoti Mandal, nutritionist and a disease reversal coach from Healthify, and I'm the host for today's session. ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है जहां हर इंसान का मिशन है अपनी हेल्थ को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना. हेल्दीफाई प्रो का विजन सिंपल है. यहाँ पे जो हमारे मेंटर्स हैं, शीनू मैम, संजीव सर, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा कम्युनिटी बनाया है, हेल्दीफाई एंड हेल्दीफाई प्रो. सो हेल्दीफाई प्रो का विजन है लेट्स हील इंडिया. हम सभी मिलकर एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां लोग डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री एंड पेन फ्री लाइफ जी सके. और इस मिशन में इनर सर्कल का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जैसे मैंने कहा, इस इनर सर्कल में हम लोगों को एम्पावर करते हैं और वेरियस हेल्थ टॉपिक्स का सोल्यूशन बताते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं और चैंपियंस अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं. उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, राइट. सो ये प्लेटफॉर्म बना है आप सभी के लिए. एक साथ आए, नए हेल्थ टॉपिक से जुड़े, नॉलेज लें और एम्पावर हों. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक दूसरे को इंस्पायर करें. ये सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1, कोच, हेल्दीफाई कोच विल शेयर अ हेल्थ टॉपिक और वी कैन कॉल इट एज हेल्थ एजुकेशन सेशन फॉर 20 मिनट्स. पार्ट 2, क्लाइंट और चैंपियन विल शेयर देयर सक्सेस स्टोरी, जो उनका रिजल्ट किस तरीके से आया, क्या बेनिफिट्स मिला उनको, क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिला. सो वो अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं. एंड पार्ट 3 इज क्विज सेक्शन. यहाँ पे हम सभी से क्विज पूछते हैं जहाँ पे आप आंसर करते हो और नॉलेज भी लेते हो. ठीक है. सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. सो आज का भी सेशन को हम बनाते हैं इंस्पायरिंग, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल. सो लेट्स नॉट just heal ourselves, let's heal India together. Welcome once again to Healthify Pro Inner Circle Call. All the coaches, it's a request to invite all your champions to the session. सब लोग ये बोलते हैं कि मैम एक ही संडे तो मिलता है, लेजी डे होता है, इसमें भी सेशन अटेंड करना है. यस, 30 मिनट्स, बस 30 टू 45 मिनट्स. ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं उनके हेल्थ के रिगार्डिंग. और आज का सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडेज टॉपिक इज, ओके, आई विल नॉट टेल यू, यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स. डू यू नो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? Okay, Sangeeta says, sorry, I'm confused. What is the difference? CH is a champion. That means a client who is following the program, health program to transform their health. जो coaches अपने clients को help कर रहे हैं, उसे हम champion बोलते हैं अपने इस inner circle call में. And coaches who are a part of Healthify. Okay. Yes. Anu, VP. Yes, many of you know what is today's topic. Yes. Hypertension. So let me invite today's health speaker. He is a passionate nutritionist and a yoga teacher. He specializes in reversing lifestyle disorders like diabetes, PCOD, PCOS, obesity, and hypertension using the power of Ayurveda, yoga, and natural nutrition. He has guided hundreds of individuals to live medicine-free, energetic lives with simple food and lifestyle changes. He has also helped people to get rid of their medicines. His mission is to create a diabetes-free society and help people live a life full of freedom, health, and celebration. He also trains aspiring nutritionists and yoga teachers and runs a powerful community wellness programs. So let's welcome Siddharth Keshwani, a true guide for holistic healing and vibrant living. Welcome, Siddharth. The stage is all yours. Before you speak, let's welcome him. Type welcome Siddharth in the chat box or welcome Sid. Okay, the stage is all yours. Thank you. Just pin myself. All right. Thank you. Namaste everybody. Welcome Rahul ji, Neelam ji, Ujjwal ji, Sangeeta ji. कैसे हैं सब लोग? I hope you are doing fine. So this is a webinar mode. Generally हम इसको video mode में करते हैं, but this is something new to me as well today. तो आप लोगों का interaction in the chat box is very much needed.
क्या हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में? राइट आई इन द चैट बॉक्स अगर हम लोग इंटरैक्शन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू रेणुका जी। आज सुबह का पहला फ्लावर मेरे को आपने दिया है, अप्रिशिएटेड। ऑल राइट, ग्रेट। तो आज का वेबिनार इज अबाउट बीपी और लो बीपी, हाई बीपी, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे आज। किसको किसको यहाँ पे अपने क्लाइंट्स में बीपी का इशू फेस होता है, या फिर किसको किसको यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के पास बीपी के बारे में जानकारी मांगने के लिए आते हैं लोग? राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों के पास ऐसे क्लाइंट्स आपको मिले हैं कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, यू जस्ट वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट बीपी। ओके, नीलम जी के पास आते हैं। ऑल राइट, अन्नू जी को बहुत सारे लोग पूछते हैं। ओके, मेक सेंस मेक सेंस, ठीक है। सो आज हम लोग कोशिश करेंगे, ऑल्दो यू गाइज आर देयर, आप लोग को बहुत सारी चीजें पता है, पर एक मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी आज आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करने के लिए, थोड़ा सा और आपको जो जो चीजें पता है उसको से वापस बताने के लिए। ऑल राइट, उज्जवल जी आपको खुद है तो आपके लिए तो आज का सेशन इज गोना बी अ गोल्ड सेशन। ऑल राइट, I'll just share my screen now. Jyoti ji, please इसको request accept कर लीजिए। Till then, I want you to know, in today's session आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम लोग कुछ आयुर्वेदा, कुछ योगा, सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम लोग बीपी को सही कर सकते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल सम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हाई बीपी में काम आते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। I'll just share my screen now. ओके, आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। राइट एस इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। ऑलराइट, जल्दी 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 जल्दी, यस एस आ गया है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई कीप द चैट विंडो ओपन ओवर हियर एंड विल स्टार्ट विद द सेशन। टुडेज सेशन, आज का सेशन है अगेन बीपी को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके। सिंपल डिफरेंसेस समझेंगे हम लोग और भी चीजें समझेंगे कि क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो बीपी का मीनिंग क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं। हाई बीपी का मीनिंग क्या होता है, उसके कॉजेस क्या रहते हैं। न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स, जनरल इंफॉर्मेशन क्या दी जा सकती है एक बीपी के पेशेंट को या फिर जिसको बीपी गो थ्रू हो रहा है। डाइट प्रोटोकॉल्स, डाइट गाइडलाइंस के अलावा हम लोग कुछ योगिक प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, वो भी आप हम लोग चर्चा करेंगे। Third and the very last thing over here is a activity which I have planned for each and everybody of you. तो आज हम लोग कुछ एक योगिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ योगिक एक्टिविटी करने के लिए? राइट, योगा इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड। ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड नाउ। थैंक यू so much Sangeeta ji. Yeah, great. So what is hypotension? Before we understand hypertension, which is high BP, let us understand what is hypotension or low BP. In very simple words, hypotension का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। We all know this कि हमारा हार्ट is responsible for the blood pressure in the body, right? You know this, right? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी हमारा प्रेशर, हार्ट का पंपिंग जो है वो कम हो जाता है, उसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बोलना चाहे, व्हेन ब्लड डजंट फ्लो प्रॉपर्ली टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स, अगर हमारा जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है जो कि नेसेसरी है हमारी पूरी बॉडी में एक प्राणिक वैल्यू और प्राणों को ले जाने के लिए, और इन सिंपल शब्द अगर हम मॉडर्न साइंस में बोले ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, अगर वो सही से नहीं होता है तो फिर हमारी बॉडी को लो ब्लड प्रेशर एक्सपीरियंस होता है। कुछ कुछ क्लाइंट्स के साथ आपने देखा होगा, या फिर अगर आपको भी कभी हुआ हो, एकदम से बॉडी डाउन फील करती है, जो ऑर्गन्स है वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं जा रही होती है, वहां पे एनर्जी ही नहीं फील होती है। उस सिचुएशन में हम समझ सकते हैं कि बॉडी में प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो कम है। ऑक्सीजन जहां पे नीडेड है अगर वहां पे नहीं पहुंचेगा, सिंपल शब्दों में हम इसको बोलेंगे कि बॉडी में हाइपोटेंशन हो गया है। लो ब्लड प्रेशर माइट सीम हार्मलेस, इतना पता नहीं चलता, हल्की सी थकावट होती है, थोड़ी सी जॉगिंग एक्सरसाइज कर लो, वापस से यू आर एक्टिव, बट इट कैन बी फेटल, क्योंकि कभी भी आ सकता है। एंड आपने देखा होगा या सुना होगा बहुत सारे केसेस पे, in elder clients or in elder patients who are like 60 plus 70 plus, they fall in the bathrooms. सुना है इसके बारे में? यस, घबराहट एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती है, मेक सेंस, राइट? लेकिन जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली क्लाइंट्स होते हैं, उनका सुना होगा आपने खास करके, वो लोग वॉशरूम में अपने आप फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसकी वजह से फेटालिटीज भी बहुत सारी आपने सुनी होंगी। पर ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि बॉडी में प्रेशर जो सही वाइटल ऑर्गन्स पे जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। इसका बेसिक कॉज और कॉजेज हम लोग समझेंगे इज डिहाइड्रेशन, राइट। तो किसने किसने अभी यहाँ पे पानी नहीं पिया है? किसने किसने पानी नहीं पिया है अभी तक सुबह से लेके? पिया होगा, लेकिन दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर एवरीबडी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए, सो ड्रिंक वाटर, ईट सॉल्ट एंड स्टे एक्टिव, ये बेसिक कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे आप लोग क्या करेंगे, अपना हाइपोटेंशन या फिर अपने क्लाइंट्स का हाइपोटेंशन मैनेज करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल कमेंट्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स hypertension. What exactly is hypertension? Hypertension, as we all know, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर को बोला जा रहा है। क्या हो रहा है? हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड, जल्दी जल्दी। इवन अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप भी एकदम से सुबह हम लोग की नींद खुलती है, अगर हम लोग एकदम आराम से वेकअप कर रहे हैं तो हमारे हार्ट में कोई ऐसा धक 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 नॉर्मल रह रहा है। लेकिन अगर एकदम से फॉर एग्जाम्पल कभी बुरा सपना देखा है या फिर किसी ने झटके से उठा दिया, तो यू कैन फील इट कि हार्ट जल्दी 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 काम करने लगता है, बिकॉज वो एक फाइट एंड फ्लाइट स्टेज पे चला जाता है। अगर हमारी बॉडी इस फाइट एंड फ्लाइट स्टेज पे ज्यादा समय तक रहती है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में हाई बीपी के चांसेस होना बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगेन सिमिलर बट डिफरेंट, पूरा टाइम घबराहट रहना। एक छोटी सी चीज समझिए आप, अगर एक जगह है वो उसकी कैपेसिटी 100 है, अगर हम उसमें बारी बारी 110 पोर करेंगे, अगर इस टम्बलर की कैपेसिटी 1.2 लीटर्स है और मैं इस पे बारी बारी 1.4 लीटर्स जग करूंगा तो ये बाहर आएगा ना। लाइकवाइज अगर हमारी बॉडी में जो कैपेसिटी है हार्ट को पंप करने की वो एक लिमिटेड है, अगर मैं उससे ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा, राइट। क्योंकि अभी वो सब अंदर चल रहा है, अपने को इतना उसका फीलिंग नहीं है, तो जो चल रहा है चलने दो, चलाते चलो, थोड़े से एक छोटी छोटी गोलियां ले लो, राइट। लेकिन ऐसे नहीं करना है, राइट। हम लोग को अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स को भी ये सिखाना है कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। इफ यू अग्री, राइट ए इन द चैट बॉक्स। अभी तक अगर आप मेरी बातों से थोड़ा बहुत भी अग्री कर पा रहे हैं तो हाइपरटेंशन इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर। पता नहीं चलता है बट इट इज, बिकॉज इट कैन क्वाइटली हार्म योर बॉडी फॉर ईयर्स विदाउट एनी वार्निंग साइंस। मेक सेंस, राइट। अगर हम लोग पूरे लाइफ टाइम अगर इसमें रहेंगे तो इट इज अ साइलेंट किलर। कैन कॉज हेडेक, चेस्ट पेन, नोज ब्लीड। बेसिक कॉज क्या है इसका? इज स्ट्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी बोलूं कि अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है, लेकिन मेरे ऊपर है ना एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे को स्ट्रेस को लेना है कि नहीं लेना है। ये चीज की कला सीखनी भी पड़ेगी, और हम लोग जिस जगह पे हैं, जिस लोगों से डील कर रहे हैं, सिखानी भी पड़ेगी। I'll tell you a very simple thing before I move on with the session. एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, उसको मैं सिर्फ एक सेकंड में आपको बताना चाह रहा हूँ। इट इज अ वेरी सिंपल थॉट कि अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप सामने वाले को नहीं दे पाओगे। सीधी सादी बात है। इफ आई एम नॉट हैप्पी, I cannot help my clients to be happy. If I am not healthy, I cannot help my clients to be healthy. So this is a more of an internal work. Stress is a very big factor for hypertension. And Aj, tell me honestly in the chat box, how many of you feel stress? We all do. That is a very natural thing to experience. But क्या हम उसको manage कर सकते हैं? Again, can you manage the stress? Write yes in the chat box if you can. Write no in the chat box if you cannot. And it is okay to say no, because we are learning and we are here to learn. कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स आज हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से, राइट। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट एंड शेयरिंग योर कमेंट्स। ठीक है, अभी तक मजा आ रहा है? गिव मी अ लाइक इन द चैट बॉक्स अगर हम लोग धीरे धीरे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। Okay, let me go back. All right, great. So basic cause हमने क्या बताया? स्ट्रेस। अगेन इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा सा सॉल्ट कम खा के, डेली योगा और वॉकिंग एक्टिविटीज करके और हेल्दी ईटिंग करके। अगेन ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन इज अ
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगेन ध्यान रखिए इस बात को, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है। आपके पेशेंट्स या क्लाइंट्स अगर आपके पास आके बोलते हैं डॉक्टर ने तो बोला है जीवन भर दवा खानी है, ठीक है, आप जीवन भर दवा खाइए, लेकिन उसको कम करने के बारे में भी सोचिए। जैसे जैसे आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे वैसे वैसे आप अपने आप इससे बाहर आ जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट लेट अस मूव टुवर्ड्स द कॉजेस। सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर के बारे में कॉजेस समझते हैं। सबसे पहला कॉज जिसके बारे में हम सब लोग अभी वर्क कर चुके हैं इज योर डिहाइड्रेशन। लो वाटर अगर आपकी बॉडी में हो जाएगा तो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो उसका मोटापा है या फिर जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी विस्कोसिटी है, वो मोटी हो जाएगी या बढ़ जाएगी। उसकी वजह से ब्लड का फ्लो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये भी हेल्प नहीं करेगा आपको लो ब्लड प्रेशर में। सेकेंड इज योर फास्टिंग। स्किपिंग मील्स ड्रॉप्स एनर्जी एंड प्रेशर। अगेन फास्टिंग अगर सही से की जाए इट्स अ वेरी गुड टूल टू हेल्प यू, लेकिन लगातार फास्टिंग करना स्पेशली इन लो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ गुड चॉइस। पोस्चर, अभी तक कितने लोग बैठे हैं जो ऐसे स्लाउच करके आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं? अपना पोस्चर ठीक करिए, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स राउंड, चेस्ट आउट। सो पोस्चर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों को कभी भी सडन काम कुछ नहीं करना है अपना बीपी को अगर अपने को मैनेज करना है तो। अगर सडनली कुछ करेंगे तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वीकनेस, बॉडी में अगर जनरल वीकनेस रहती है, इलनेस है या फिर फटीग है, तो उससे भी आपका क्या होता है? आपका कॉज होता है आपका ब्लड प्रेशर का या लो ब्लड प्रेशर का। सेकेंड, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉजेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अगेन सबसे पहली चीज ये हम सबको पता है क्या है, इज योर सॉल्ट। एक्सेस ऑफ सॉल्ट इंटेक क्या करता है? टाइटन्स द ब्लड वेसल्स। अब आप एक चीज समझिएगा, लेट्स से हम लोग के घरों के बाहर एक वाटर पाइपलाइन जा रही होती है जिससे एक्सेस वेस्ट जा रहा होता है। दूसरी एक वाटर पाइपलाइन जाती है जिससे हमारे घर पे फ्रेश वाटर या फिर म्यूनिसिपैलिटी वाटर आ रहा होता है, राइट? अभी अगर उस उन दोनों का आप समझिए, फ्रेश वाटर के लिए भी हम उसका जो मुंह है छोटा कर दें तो आपके पास कम पहुंचेगा। लाइकवाइज अगर जो कचरा फ्लो हो रहा है उसका भी अगर हम लोग मुंह छोटा कर दें तो उससे क्या होगा? आपका जो वाटर जाना चाहिए अच्छे से, स्पेशली इन द मॉनसून सीजन विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इन इंडिया, तो उसमें क्या होगा? पानी अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, आपका वाटर क्लॉगिंग हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, इतना ज्यादा अगर आप सॉल्ट लेंगे बॉडी के अंदर, जो जो ब्लड वेसल्स है वो टाइटन हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। उससे क्या होता है? जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है बॉडी के अंदर वो नहीं होता है। अगर इससे कुछ नया पता चला तो राइट NAYA नया इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, सेकेंड इज योर स्ट्रेस। हम लोगों को सबको पता है स्ट्रेस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिग फैक्टर इन एवरीबडीज लाइफ। उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे वर्क करना है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड इज योर इनएक्टिविटी, नो मूवमेंट। अगर हम कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन स्लाउच करके बैठे हुए हैं, अगेन ये क्लाइंट्स को अपने को बताना जरूरी है कि जो शीनू मैम हमेशा कहती हैं, फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल मूवमेंट दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, राइट? तो इन एक्टिविटी नहीं रखनी है अपने को, कुछ ना कुछ मूवमेंट करना रहता है। स्पेशली इन द केस ऑफ हाई बीपी आपको हार्ट को पंप करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करने की जरूरत है। ओबेसिटी, ज्यादा वेट इज एन अम्ब्रेला। जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई की थी, आई रिमेम्बर वेरी फॉन्डली व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट ऑल दिस, मेरे टीचर्स ने मुझे साफ साफ बोला था कि सिद्धार्थ, ओबेसिटी इज एन अम्ब्रेला फॉर डिजीजेस। एंड आप जनरली देखोगे अपने क्लाइंट्स के साथ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो ओबीस होंगे और उन ओबीस के साथ उनको और भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे। यस, इफ यू कैन अग्री विद दिस, राइट? ओबेसिटी और ओ इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं आप। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिम्टम्स। सिंपल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं लो बीपी के लिए। डिजीनेस, हेजीनेस फील होगा, लाइट हेडेड फील होगा, सर घूमने लगेगा, फेंटिंग, थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू एवरीबॉडी। फेंटिंग, थैंक यू मोहम्मद जी। फेंटिंग, जल्दी से ड्रॉप आउट हो सकते हैं, फटीग हो सकता है बॉडी के अंदर, और ब्लरी विजन आप एक्सपीरियंस करेंगे जब सिम्टम्स होंगे आपको लो बीपी के। सेकेंड, वी आर मूविंग टूवर्ड्स सिम्टम्स ऑफ हाई बीपी। हेडेक, सर दर्द होना, सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में ब्लड फ्लो तेजी से जा रहा है तो फिर सर दर्द होने के चांसेस हैं, बिकॉज पेन रिसेप्टर्स थ्रू आउट द बॉडी है। प्रेशर होगा बॉडी के अंदर, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी आपको, हैवीनेस फील होगा, थकावट फील होगी, खास करके चेस्ट में, यहाँ पे दर्द वर्द होगा बहुत सारा। नोज ब्लीड, सडन नोज ब्लीड। अब देखिए, सीधी सादी बात समझिए यहाँ पे, आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू,
अगर आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो तेजी से है तो जनरली कुछ लोगों को आपने देखा नाक से खून निकलता है। क्यों? यहाँ पे जो ब्लड के जो वेसल्स हैं बहुत पतले पतले होते हैं एंड वो रप्चर बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा सर्दी जुकाम किसी को हुआ है, जल्दी से नोज रब भी करो तो खून निकल सकता है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड एंडिंग्स है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और उसका रप्चर करना इजी होता है कंपेयर टू द अदर ब्लड वेसल्स विच आर रनिंग थ्रू द बॉडी। रेस्टलेसनेस फील करेंगे आप, एंशियस फील करेंगे, अनेबल टू रिलैक्स फील करेंगे। ऑल राइट, सो ये थे हमारे कुछ सिम्टम्स एंड कॉजेस। Next, we are moving simply. We should understand and we should also tell this to our clients and our patients how to check blood pressure. वैसे तो पहले के जमाने में there was this बड़ा सा what do you say मरकरी वाला एक ब्लड प्रेशर का मशीन होता था। किसने किसने बाय द वे वो देखा है? बिग मशीन, आई डोंट नो, इट्स अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर ओनली। यस, ओके ओके, दो तीन लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। यू हैव इट ऑल्सो, राहुल जी हैज इट ऑल्सो। पर आजकल डिजिटल आ गए हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दैट, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट उसको यूज करने का तरीका, व्हेन आई वाज देयर इन पतंजलि वेलनेस सेंटर, तब वहां पे हम लोगों को सिखाया गया था कि कैसे ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। डिजिटल वालों ने मतलब काम तो आसान कर दिया है, पर जब वो कान पे आप स्टेथोस्कोप लगा के एक्चुअल में फील करते हो ब्लड ऐसे ठप 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 वाली आपको जो हार्ट की आवाज आती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है तो एक्सपीरियंस जरूर करिए, आपको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे अपनी बॉडी को, एट द सेम टाइम अपने क्लाइंट की बॉडी को। तो सिंपल मेथड है, यू हैव टू जस्ट प्लेस इट, सिट कामली फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिफोर चेकिंग। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, बैक सपोर्टेड रखना चाहिए, आर्म लेवल पे हाथ रहे, सॉरी हार्ट लेवल पे आर्म रहेगा आपका। कफ लगाने के बाद सिंपली यू जस्ट डू द, इफ इट्स डिजिटल डू द डिजिटल प्रोसेसेस, इफ इट्स मैनुअल डू द मैनुअल प्रोसेसेस, एंड देन you should know the normal range should be around 120 to 80. okay, अगर यहाँ पे लो बीपी होता है तो क्या होंगी ये जो रेंजेस होंगी? 90 से 60। अगर यहाँ पे आपका हो रहा है तो ये लो ब्लड प्रेशर है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो 130 टू 80 के साइड में होंगी। अब इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, ये सब थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अभी के लिए आपको सिंपल अगर इन नंबर्स के बारे में समझना है तो 90 से 60 अगर रेंज आ रही है कुछ तो लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, 130 से 80 आ रही है तो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए? 120 से 80। एवरीबडी राइट द आइडियल रेंज इन द चैट बॉक्स। आइडियल रेंज कितनी होनी चाहिए? तब तक हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर के बेसिक्स क्या है? हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन इज द कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर इज abnormally लो। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉजिंग डिजीनेस एंड फेंटिंग। हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर इज persistently high, increasing the risk of heart diseases। तो ये छोटा सा रिकैप है आप लोगों के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। आयुर्वेदा एंड योगिक प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। सबसे पहला इनिशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है और आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कैसे आप इसको समझेंगे। Second, you have to incorporate some lifestyle changes which include exercise, yoga, diet protocols, and third is your regular monitoring. I know people in my family, I know people from so many parts of the world जो लोगों को बीपी की दिक्कत होती है एंड वो लोग चेक करते रहते हैं अपना बीपी। चेक करने के बाद वो लोग अपने गोलियों को लेते हैं या फिर जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है मेडिसिन उसको लेते हैं। एंड इट इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। अगेन डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, अपने कंसल्टेड हेड प्रोफेशनल से बात करिए इसके बारे में। लेकिन अगर आपको नेसेसरी नहीं है, इवन फॉर माय फादर आई कैन से, अगर नेसेसरी नहीं होता है तो वो बीपी की गोली नहीं खाते हैं। लेकिन अगेन ये आपको डेली चेक करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, फिर जाके आप ये डिसीजन लेंगे। एकदम से ये डिसीजन लेना की कोई जरूरी नहीं है। बीपी की गोलियां छूट सकती हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन सही मॉनिटरिंग के साथ। तो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रेगुलरली मॉनिटर योरसेल्फ। आई हैव सीन दिस केस आल्सो इवन इन माय हाउस होल्ड। अगर बीपी की गोली नहीं खाई है उसकी वजह से सर की नस फट भी सकती है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। सो इट इज नॉट अ जोक। आपको गोली
सही से छोड़नी है, सही तरीके से छोड़नी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी. ओके, जस्ट टेलिंग यू विच इज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. ऑल राइट, परफेक्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द Ayurveda management part, which is ऑल राइट. सो आयुर्वेदा की दृष्टि से क्या समझ में आता है हम लोगों को? हमारे आयुर्वेदा में तीन चीजों के बारे में प्रोमिनेंटली बात होती है, विच इज योर वात, पित्त, कफ. अभी वात क्या रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, पित्त क्या रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, कफ क्या रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, इसके बारे में जल्दी से समझते हैं. द ओवर यूज ऑफ सॉल्टी स्पाइसी अल्कोहल कंजम्पशन, इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो दूषित हो जाता है, और इन अदर वर्ड्स ब्लड टॉक्सिक हो जाता है. अब ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए. अब अगर उसमें टॉक्सिसिटी है तो ऑक्सीजन के साथ टॉक्सिक केमिकल्स और टॉक्सिक चीजें भी जाएंगी, सीधी सादी बात है. आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर इसको समझे तो क्या हो रहा है, आपका पित्त धातु सॉरी पित्त जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वायलेट हो जा रहा है. सेकेंड, सिडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो वो क्या उससे प्रॉब्लम होगी, आपका कफ प्रॉब्लमैटिक करेगा. एंड सेकेंडली, इफ अगर बॉडी में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इससे क्या होगा, आपका वात बढ़ेगा. अभी डीपली नहीं समझेंगे इन सब चीजों को, बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए. वात पित्त कफ जो है वो भी अफेक्ट होता है. ऑलराइट, वात पित्त कफ होता है वो भी अफेक्ट होता है. अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है, वात. जब वाता एग्रीवेट होता है आपकी बॉडी में, जो एयर प्रिंसिपल है, स्पेस एलिमेंट्स हैं, अगर वो होता है तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है. सीधी सादी बात है, अगर हम लोग इसको समझें, जो बॉडी के अंदर वात है, एयर प्रिंसिपल है बॉडी के अंदर, सिर्फ इसको समझिए आप, एयर प्रिंसिपल है, अगर हवा तेज चलने लगेगी तो ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी. इसको समझने के लिए आप समझिए, अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एयर निकलता है, जल्दी जल्दी आप सांस हाफने भी लगोगे, इनहेल एंड एक्सहेल अच्छे से करोगे, राइट. और उसके बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली यू विल फील दैट आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट बढ़ गया. ओके, आई एम गेटिंग कमेंट टू गो स्लो. क्या आपको बातें समझ में आ रही है? गिव मी अ यस. अगर नहीं आ रही है, गिव मी अ नो. आई कैन गो स्लो, दैट इज कंप्लीटली फाइन. Just looking for your comment right now. If you want me to go a little bit low, just no. Okay, everybody is okay, getting it. Yes, no, yes, no. Little bit slow. चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाने की कोशिश करते हैं. There's no rush. Again, जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वाता बढ़ जाएगा. तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरी बात अभी तक की सारी समझ में आ गई. ऑलराइट, अल्टीमेटली इन सब चीजों से क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. चलिए, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. कैसा आयुर्वेदा कहता है कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है. अकॉर्डिंग टू चरक संहिता 28/92, इसके अंदर सिंपल सी चीज एक लाइन बोली हुई है, रेगुलर मॉनिटरिंग, निदान परिवंजना, अवॉइडेंस ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसी को ही सही करना. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अवॉइडेंस ऑफ द कॉजेटिव, जिसकी वजह से हो रहा है. लो बीपी किसकी वजह से हो रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स. हाई बीपी किसकी वजह से हो रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स. अगर हम इन कॉजेस को अवॉइड कर देंगे तो सिंपल है, इट विल नॉट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल डिजीजेस इज रिमूविंग ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स. सिंपली अगर हम लोग हाई बीपी लो बीपी के बारे में बात करें, एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड फैटी सब्सटेंसेस शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम प्रिवेंशन. क्या है प्रिवेंशन हमारे? सो सिंपल है, सबसे पहला हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, कंज्यूम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स सच एज एप्पल, बनाना, ब्लैकबेरी, ब्रोकली, कैबेज, कैरेट, गार्लिक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनियन, पी, टोमेटो एक्सेट्रा. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपकी बॉडी में गुड जो टॉक्सिन्स हैं उसको कम करने के लिए, गुड थिंग्स को इंप्रूव करने के लिए. सेकेंड, कंज्यूम प्रेफरेबली वेजिटेरियन फूड, लो फैट, लो कैलोरी डाइट, रिच इन होल ग्रेन, हाई फाइबर एंड नट्स. ये सब हम लोग को पता है, फिर भी मैं जस्ट रिकॉलिंग यू. use of garlic and onion in your regular diet is a good option if you want to help it. Again, सबके लिए सही नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए सही है. Practice
फिजिकल एक्सरसाइजेस सच एज ब्रिस्क वॉकिंग डेली 30 to 45 मिनट्स आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। वेट रिडक्शन, अगर ओबेसिटी है तो उसकी जरूरत है। सॉल्ट का यूज लेस देन 5 ग्राम पर डे, ये आपको होना चाहिए। फैट्स एंड स्वीट्स का भी। स्लीप को अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड किसको करना है? आपको डे स्लीप को अवॉइड करना है। एंगर, एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी एंड ओवर एक्सर्शन। वैसे बोलना बहुत आसान है ये सारी चीजें करना, लेकिन जब लाइफ में बीतती है तब पता चलता है। राइट, अग्री इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन अग्री विद इट। लेकिन अगेन, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये सारी चीजें आपको खुद के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी, खुद से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से लास्ट नाइट इफ आई वाज फीलिंग एंग्री, अगर मैं वही एंगर आज यहाँ पे आके इस वेबिनार को अफेक्ट करूं तो नहीं हो पाएगा। somebody wrote agree, but they can be controlled and managed. Exactly, you can manage it, you can have a sense around it. आपको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज कैसे मैनेज करना है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। सो agree to it and understand it, and also help your clients to understand it, that it is your choice to be stressful, it is your choice to be without stress. Okay, so कौन without stress है अभी? Write WS in the chat box if you are without stress, या फिर इस point onwards आप लोग हो जाएंगे। Perfect. All right. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Also, थोड़ा सा easy, सब लोग थोड़ा सा एक स्माइल करेंगे, ऐसे ही फील फ्री लगने लगता है। Everybody just smile right now. Okay, there's a question. What about eat non-veg? Can you guide on non-veg? All right. आपके जो questions हैं, we will take at the end of the webinar. Thank you, Anuj. Perfect. Now, let us move towards some little bit of dietary guidelines. Eat fresh, home-cooked meals with less oil and salt. Include fruits, vegetables, whole grain, and soaked nuts daily. ये आपकी बॉडी में डेली जाना चाहिए। For low BP, add rock salt, lemon water, and small frequent meals. थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। Avoid junk food, pickles, excess tea, coffee, packaged snacks. इन सबको avoid करना है। Stay hydrated and follow light activity, walking and yoga. अभी क्वेश्चन कर ही दिया है और हम खाने के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो आई एड्रेस दिस क्वेश्चन राइट नाउ, नॉनवेज फूड का। देखिए, आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर आप देखो तो जो नॉनवेज फूड है इज अ तामसिक फूड, इट इज नॉट अ वेरी गुड फूड फॉर द बॉडी। लेकिन अगर मॉडर्न न्यूट्रिशन की दृष्टि से आप देखो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ योर प्रोटीन। पर क्या हम लोग नॉर्मली वेजिटेरियन खाना खा के भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं? जहां जरूरत है वहां लीजिए, मनाही नहीं है किसी चीज की, लेकिन कैसे कुक करना है? इजी तरीके से कुक करना है कि बॉडी को उसमें इतना अफेक्ट ना हो। लेकिन बेसलाइन क्या है? इट इज अ तामसिक थिंग, इट इज अ डेड मीट, इट इज समथिंग विच इज डेड। आपकी बॉडी में ऐसे नहीं तो वैसे अफेक्ट जरूर करेगी। अगेन, आयुर्वेदा मना नहीं करता है आपको खाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस और गाइडलाइंस देता है। दिस इज सात्विक, दिस इज राजसिक, दिस इज तामसिक। तामसिक जो भी बॉडी के अंदर एक इनर्शिया क्रिएट करे, जो भी बॉडी को स्लो और डल करे, वो होता है तामसिक फूड। सात्विक फूड क्या होता है? जो भी बॉडी को ग्लो करे, आपको रिवाइटलेट करे, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी इंट्रोड्यूस करे। तो अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से फेस कर रहे हैं, तो जितना कम हो सके उतना आपको फोकस करना है नॉनवेज फूड्स पे, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको कैस पे फोकस करना है? सात्विक फूड्स पे। तामसिक, सात्विक, आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। परफेक्ट। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स योगा। ये ऑलराइट, योगा क्या है? योगा asanas which are important for your high BP. So simple yoga asanas I have selected for you guys, and you can also share this. योगा से ही होगा, exactly. तो सबसे पहला आसना है इस योर ताड़ आसना। इट्स अ वेरी सिंपल आसना। कैसे करना है? आपको खड़े होना है। यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप्स आप देख रहे हैं। अभी मत खड़े होइएगा, जस्ट सी द स्टेप। सिंपल है। 1, हाथों को आपको सिंपल रखना है सीधा, एंड देन यू हैव टू इंटरलॉक योर फिंगर्स, टेकिंग इट अप, गो अप, गो अप, गो अप, स्ट्रेच। काफ्स को भी ऊपर लेके आना है, राइट? इससे क्या होगा? पॉस्चर इंप्रूव होगा, सीधे बैठने की आदत, सीधे रहने की आदत टलेगी, ब्लड सर्कुलेशन और बैलेंस आपका बढ़ेगा बॉडी के अंदर।
ताड़ासना, दिस इज अ वेरी सिंपल आसना, आप भी कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं. वेरी सिंपल, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सेकेंड इज योर वज्रासना. वज्रासना अगेन बैठने और उठने का एक सही तरीका होता है. अगर आप खड़े होके वज्रासन में आ रहे हैं तो दिस इज 1 2 3 4 steps. How do you go for your Vajrasana? Second, Vajrasana, I ask almost every client. क्या? Simple. कि आपको खाना खाने के बाद वज्रासना में अच्छे से बैठना है. क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका काफ्स जो है, काफ्स प्रेस हो रहा है. जैसे ही आपका काफ्स प्रेस होगा, उससे क्या होगा? आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर पेट की तरफ आएगा. पेट की तरफ आएगा तो उससे क्या होगा? जल्दी से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा. जैसे ही खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन इश्यूज चले गए, बीपी के इश्यूज चले गए, लाइफस्टाइल इश्यूज चले गए. हर चीज के लिए these asanas which I am telling you, these are like basic asanas for most of the things you can heal from these asanas only. So vajrasana कौन कौन करता है यहाँ पे after eating the food? Right? Yes in the chat box. अब थोड़े कम yes आएंगे. नहीं आ रहे हैं. ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड. और अगर आप नहीं करते हैं दैट इज ऑल्सो ओके. आज से नहीं तो एटलीस्ट आज क्या हम अपने लंच के बाद या डिनर के बाद बैठने की कोशिश कर सकते हैं? एग्जैक्टली सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि नी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन उस पे भी आई हैव अ ट्रिक. सिंपली ग्रैब अ पिलो एंड देन प्लेस इट अबव योर calves एंड सिट ऑन द पिलो. वेरी इजी. Okay, who is committing today? Right, see in the chat box if you're committing. आज एटलीस्ट एक बार आप वज्र आसन में बैठेंगे आफ्टर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. 11 गुड कमिटमेंट टाइम. परफेक्ट, बहुत लोगों का कमिटमेंट आ रहा है. वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिटिंग. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ टू योरसेल्फ एंड योर फ्यूचर. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स योर शव आसना, द मोस्ट ब्यूटिफुल आसना ऑफ ऑल. रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका, स्पेशली इन एवरी सिचुएशन. रिलैक्स करके हाथों को ऊपर करके, एक चीज का बस इस पर ध्यान दीजिएगा, वेस्ट के बगल में हाथ, palms facing upwards towards the ceiling or the sky. ये आपको रखना है. रिलैक्स ब्रीदिंग करनी है, पेट के थ्रू इनहेल एंड एक्सहेल, चेस्ट के थ्रू इनहेल एंड एक्सहेल. जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स. इससे क्या होगा? डीप रिलैक्सेशन होगा. दिस इज एक्सीलेंट फॉर योर हाई बीपी. ऑलराइट, ये थे हमारे कुछ योगा आसनास. नेक्स्ट we are moving towards our pranayam section. हाई बीपी के लिए बेसिक प्राणायाम्स हैं. कपाल भाती प्राणायाम अगर आपको पता हो तो वो नहीं करना होता है हाई बीपी में. जो जो करना होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. अनुलोम विलोम बैलेंस क्या करता है? नर्वस सिस्टम को एंड काम करता है आपके माइंड को. राइट, सो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है. अनुलोम विलोम प्रैक्टिस सिंपल है, ये बहुत इजी है. इसमें क्या होगा? इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सहेल करना है राइट से, फिर इनहेल करना है राइट से, एक्सहेल करना है लेफ्ट से. ऐसे आपका अनुलोम विलोम होता है. दिस इज योर वन साइकिल. इसमें हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से शुरू होगा आपका और लेफ्ट पे ही खत्म होगा एक साइकिल. ओके, दिस इज योर अनुलोम विलोम प्राणायाम. नेक्स्ट वी हैव योगिक ब्रीदिंग. इट व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरीके से हम लोग ब्रीदिंग करते हैं. समटाइम्स वी ब्रीथ टिल हेयर, समटाइम्स वी ब्रीथ टिल आवर स्टमक, समटाइम्स वी आर जस्ट ब्रीदिंग. राइट, सो हम लोगों को तीन तरीके की ब्रीदिंग समझनी पड़ेगी यहाँ पे. वन इज योर क्लैविकुलर ब्रीदिंग, इनहेल करते हैं तो आपका जो ये कॉलर बोन है वो राइज होता है. सेकेंड इज योर थोरैसिक ब्रीदिंग, आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है. एंड थर्ड इज योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट फूलता है. तो इस योगिक ब्रीदिंग को करने के लिए आपको इन तीनों ब्रीदिंग को करना है. ठीक है, क्या करता है इससे? अभी हम लोग आगे जाके इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे. पर क्या करता है इससे? आपका इनर बैलेंस होता है, मेंटल स्टिलनेस आती है. ओके, थर्ड and very important is your Brahmi pranayam. Again, very good for high BP, uplifts the mood and fills the mind with the calm energy. All right, ये हमने कुछ प्राणायाम बताए, कुछ योगिक प्रोटोकॉल्स बताए. Now is the time to have some takeaways. आज क्या क्या हमने सीखा? ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, उसके कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, थोड़े से न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा की, थोड़ा सा आयुर्वेदा के बारे में बताया एंड योगिक प्रोटोकॉल्स बताए. नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी. Everybody sit straight, सीधे बैठ जाएंगे. Yes, very good. Whoever is doing the activity, before doing the activity, write me in the chat box so that I know that you are actively participating in the activity. I'm just looking for the comments right now. Me. I at least need 100% of you people to commit to this.
Perfect. Write me. जल्दी 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 जल्दी. हाँ, good. Okay. Now, what exactly we need to do? We are doing yogic breathing over here. कैसे करना है अपने को? Simply, you can relax now. Now, सीधे बैठेंगे. Take a long deep inhale and deep exhale. Right now your eyes are open. Again, take a long deep inhale and deep exhale. For the very last time, take a long deep inhale and deep exhale. Beautiful. Now, gently close your eyes. आंखों को बंद कर देंगे. अगर आपने स्पेक्स पहने हैं तो स्पेक्स को रिलैक्स कर देंगे, रिलीज कर देंगे. Very slowly, we are moving into our yogic breathing process. Simply for this, place your right hand over your chest, left hand over your navel. Right hand आपके सीने पे आएगा, left hand आपकी नाभि के ऊपर रहेगा. आप सांस को अंदर लेते हुए एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका चेस्ट आउट जा रहा है और पेट आगे आ रहा है, पेट फूल रहा है. Deep inhale. With deep exhalation, your stomach is going in, chest is collapsing and collarbone is going down. Deep inhale, collarbone is rising, chest is expanding, stomach is going out. Deep exhale, stomach is going in, chest is collapsing, collarbone is going down. लंबी गहरी सांसें अंदर, लंबी गहरी सांसों के साथ छाती को फूलते हुए एक्सपीरियंस करेंगे, पेट को फूलते हुए एक्सपीरियंस करेंगे. सांसों को बाहर छोड़ते हुए पेट अपने आप अंदर आ रहा है, चेस्ट हल्के हल्के से श्रिंक होते जा रहा है, कॉलर बोन नीचे आ रही. अगले 1 मिनट के लिए योगिक ब्रीदिंग को एक्सपीरियंस करेंगे आंखें बंद करके. कीप ऑन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा. हल्की सी मुस्कुराहट के साथ have a slight smile on your face while we are doing yogic breathing pranayam. Slowly releasing your hands. दोनों हाथों को रिलीज करेंगे. Place your hands in front of your chest in Namaskar Mudra, keeping your eyes closed. Let us end today's session with one Omkara and three Shantis together. Everybody together. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Gently start rubbing your hands. Generate some heat. Place it on your face. Open your eyes. The smiling face. Hari Om. Thank you so much for this practice, everybody. कैसा फील कर रहे हैं? Write in the chat box. Till then, I ask Jyoti ji to take over. Thank you so much, Siddharth. It was a very, very informative session. और आपने जो activities करवाया वो बहुत ही amazing था. Relaxed feel हो रहा है. I hope यहाँ पे हम messages भी देख रहे हैं कि everybody is mentioning feeling relaxed, feeling impressive, relaxed, good, amazing yoga session. So आपने जो भी lifestyle changes भी बताया वो tips है, योगिक practices है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पे एक्टिविटीज भी करवाए तो बहुत लोगों को वो बेनिफिट होगा. तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है ऑडियंस से
अभी कितने लोगों को यहाँ पे लग रहा है या किस किस को लग रहा है कि काश हमारे क्लाइंट्स भी यहाँ पे अटेंड करते तो उनको कितना बेनिफिट होता? यस और नो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर अभी आपको फील हो रहा है कि काश हमारे क्लाइंट्स भी अटेंड करते तो उनको कितना वैल्यू मिलता। यस 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 यस, राइट। सो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनवाइट ऑल योर चैंपियंस, ऑल योर क्लाइंट्स for this session every Sunday, just 45 minutes अगर अपने अपना टाइम निकालते तो उनको इससे बहुत ही वैल्यू मिलेगा और बहुत बेनिफिट होगा। So do not miss next time, coaches. Please understand this is very useful and beneficial for them. Okay, so let's move to the next part. We don't have a client success story today, but if anyone would like to mention कि last 1 week में आपका कोई भी win हो related to your health, for example 1 kg lose हुआ या फिर few inches lost हुआ या फिर you're feeling energetic or good gut health, कुछ भी अगर आपको changes दिखाई दिया तो you can mention in the chat box any one win, you can share it here quickly so that we'll move to the next session. बहुत ही सरप्राइजिंग पार्ट है, नेक्स्ट क्विज सेक्शन है। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितना आपने समझा, कितना सुना। So Siddharth, you can stay here so that it will be helpful for people. Okay, I attended for the first time Anubhukta. Very good. किसी का भी कोई विन नहीं है हेल्थ के रिलेटेड? Nobody? That means you're not taking care of your health. Being a health coach या फिर champion, I hope you are taking care of your health. If yes, you can mention your win. Nobody? Quickly. कोई वॉक भी अगर कर रहा है, if you increased your step count, you can mention that. Okay, so this shows okay, first session है। Very good. Fine, let's move to the next session. So किसी का भी कोई win नहीं है, but next time you can focus on your health and कोई भी अगर आपको win दिखाई देगा तो you will share it next week. ठीक है? Let's move to the next part, that is quiz section. Is my screen visible? No. Okay, open the chat box. Yes, okay. So here is the first question. What is considered the normal range for blood pressure in adults? Option A, 140 by 90, option B, 120 by 80, option C, 100 by 60, option D, 160 by 100. I want answers from everyone. सभी लोग everyone select कीजिए, beside the two option है ना, वहाँ पे host and panelist की जगह आप everyone select कीजिए. Okay, I could see B, 120 by 80, 120 by 80. Yes. Somebody said A. No. The normal range is 120 by 80 is the right answer. Next question. Which organ is most directly affected by high blood pressure over time? Option A, lungs. Option B, heart. Option C, liver. Option D, stomach. ये काफी लोगों को अच्छे से पता होगा. Option B. Yes, right. So heart is the most affected organ due to high blood pressure. Right answer. Next question. What is the medical term for high BP? Hypotension, tachycardia, hypertension, या hyperglycemia? Okay, somebody said A, somebody said C, some are saying D. सिद्धार्थ जी ने बहुत ही अच्छे से बताया था, यहाँ पे हाई बीपी का एक और टर्म है. Okay, so people are little confused. So right answer is C, hypertension. Okay, hypotension low BP होता है and hypertension is high BP. Okay, hyperglycemia that is related to sugar levels. Okay, next, which of the following is a potential cause of high blood pressure? क्या causes होते हैं इसके? Sedentary lifestyle, high salt intake, chronic stress या सभी? All of the above. कौन सा potential cause है? Yes, all. Right. D is the right answer. ये सारे causes है. Chronic stress से भी होता है, high salt intake से भी होता है, sedentary lifestyle से भी होता है. Right? Next, which number in a BP reading refers to the pressure when the heart beats? जब heart beat करता है तो वहां पे जैसे हमने कहा 120 by 80 is the normal range. Okay, so 120 by 80 systolic versus diastolic. तो यहाँ पे हार्ट बीट जब करता है तो कौन सा रीडिंग उसे हम कहते हैं? डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक या पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट? आई कुड सी बी और सी, बहुत लोगों ने कहा नो, सिस्टोलिक. बी इज द राइट आंसर. जब हार्ट बीट करता है वो सिस्टोलिक रीडिंग होता है, एंड जब रिलैक्स करता है
है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच लाइफस्टाइल चेंज कैन सिग्निफिकेंटली लोअर ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए reducing sugar, option B sleeping less, option C increasing salt, option D regular exercise. Some are saying C, some are saying D. Multiple answers भी हो सकते हैं। Very good. Which lifestyle change can significantly lower blood pressure? Yes, regular exercise and reducing sugar. So both are the right answers. क्योंकि अगर शुगर इंटेक ज्यादा हो रहा है तो शुगर लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है। अगेन ओबेसिटी हो रहा है तो ब्लड वेसल्स का जो बहुत ही नैरो हो जाता है, सो अगेन इससे भी बीपी इश्यूज बढ़ने की चांसेस होती है। सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट, विच vitamin is helpful in regulating blood pressure? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin D, option D vitamin K. Which vitamin is helpful in regulating blood pressure? सबके आंसर्स आने चाहिए। ओके, ऑप्शन people are saying D, D, K, A, D, D, B. सारे आंसर्स आ रहे हैं, A, B, C, D. Okay, let me tell you. Yeah. So option D, vitamin D is the right answer. Vitamin D helps in regulating blood pressure. Okay, ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। Next, at what BP level is hypertension generally diagnosed? At what BP level is hypertension generally diagnosed? BP कितना होता है तब जाके हम बोलते हैं कि hypertension हो गया है? कितना होता है? Very good. Option D is D, 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 D. Yes, D is the right answer. 140 by 90 mm by Hg. D is the right answer. Next, last question. Sorry, one more question is there. What is white coat hypertension? ये बहुत लोगों को नया होगा. Many of you might not know, but आज आप सीखेंगे. What is white coat hypertension? High BP caused by cold weather, or high BP only at the doctor's clinic, or BP fluctuations after exercise, or low BP in winter? क्या होता है white coat hypertension? Okay, I'm getting all the options. B, B, A, B, B, C. Okay, कुछ लोगों ने right answer दिया है. Okay, Anu says no idea. Very good. B, C. All right. So right answer is high BP only at the doctor's clinic. Option B is the right answer. आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते ही उनका बीपी लेवल राइज हो जाता है ना? सो उसे कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट इसी टर्म से आया क्योंकि डॉक्टर्स व्हाइट कोट पहनते हैं, सो इस टर्म को लेकर बताया गया है कि हाई बीपी ओनली एट द डॉक्टर्स क्लिनिक। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स कैन सपोर्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल नेचुरली? कौन सा हर्ब हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में? आशु सेज नो फॉर मी। ओके, थैंक्स। ऑप्शन ए अश्वगंधा, ऑप्शन बी टर्मरिक, ऑप्शन सी गार्लिक, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हर्ब बहुत ही हेल्पफुल होता है बीपी कंट्रोल करने में? ओके, डी, सी, डी, ऑल, सी, सी, डी। ओके, पीपल आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हियर। गार्लिक तो है ही, बट गार्लिक के अलावा टर्मरिक एंड अश्वगंधा भी बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। एक छोटा सा एक्टिविटी है यहाँ पे, नॉट एन एक्टिविटी बट दिस इज फॉर यू। व्हाट आर योर नंबर्स? बीपी अवेयरनेस चैलेंज। सो हाउ मेनी ऑफ you knew your last BP reading or know your last BP reading? किस किस को पता है? You can type in the chat box. क्या आपने मेजर किया है recently? कितना है आपका बीपी? If no, गेट इट चेक रेगुलरली। आपको चेक करते रहना चाहिए बिकॉज इससे आपको यू गेट टू नो अबाउट योर ओन हेल्थ। बीपी कितना है, अगर बढ़ रहा है तो मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए नहीं, ये एक यू गेट टू नो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक योर बीपी एंड शुगर लेवल्स बोथ रेगुलरली। नेक्स्ट, नेम 3 लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट कैन हेल्प कंट्रोल बीपी। कौन से ऐसे 3 लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, जो आपने सेशन में अभी पढ़ा। सिद्धार्थ ने बताया था, राइट? कौन कौन से लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिससे हम बीपी कंट्रोल कर सकते हैं? ओके, अनु सेज कार्डियो। 3 मेंशन करने आपको। वॉक, योगा, रेगुलर वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस सॉल्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेरी गुड, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन, लेस सॉल्ट, ओके, अवॉइड एक्सेस सॉल्ट, शुगर, रेगुलर एक्सरसाइज, लेस सॉल्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेरी गुड। यस, सो बहुत सारे हैं। जो भी ऑप्शंस आपने मेंशन किए हैं वो सभी सही है एंड इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, नेम 3 फूड्स दैट कैन हेल्प कंट्रोल बीपी। ऐसे कौन से
बेसिकली फूड है जो बीपी कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. एप्पल, गार्लिक, एप्पल, pear, green leaves, yes, green vegetables, fruits. Garlic, most of you are saying garlic. Yes, it is very good herb to control BP. Apple, banana, green leaves, garlic, turmeric, cumin. वेरी गुड. ओके, कैरेट भी अच्छा होता है. यस, बनाना, स्पिनाच, गार्लिक, ऑनियन, गार्लिक, ग्रीन वेजिटेबल्स. वेरी गुड. Okay. Madam joined late, so can we get recording? You can reach out to your coach who has invited you. They'll be able to help you. Broccoli, onion, methi seeds, green leafy vegetables. Yes. Very good. Next, which number indicates the heart's resting pressure? Which number indicates the heart's resting pressure? हम quiz section में बात कर रहे थे. One of the questions was about heartbeat. कौन सा number indicate करता है? Systolic या diastolic? Yes, Anil, right answer. आप host and panelist की जगह everyone select कीजिए ताकि सभी को दिखाई देगा. Okay. Yes, very good. Diastolic, diastolic, diastolic. Ujjwal, Prachi, Sakshi, Anu, Sindhu. Yes, yes. Neelam, diastolic, diastolic. Anvita says diastolic. Very good. Nazir, wow. So systolic होता है हार्ट बीट जब करता है, और हार्ट रेस्टिंग प्रेशर में जो होता है उस रीडिंग को हम डायस्टोलिक कहते हैं. ठीक है, दैट्स ग्रेट. सो ऑलरेडी हमने एक्टिविटी कर लिया, डीप ब्रीदिंग एंड योगिक ब्रीदिंग. सो विल नॉट डू इट नाउ. दैट्स इट फॉर टुडे. कैसा रहा आज का सेशन? क्या आपने कुछ नया सीखा? डिड यू लर्न समथिंग न्यू? यस, ग्रेट. सो टाइप 1 टेक अवे दैट यू विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम टुडे. ऐसी कौन सी चीजें जो आज से आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, जो आज आपने सेशन में सीखा? ओके, कुलजीत सेस वज्रासना. वेरी गुड. नीलम सेस लर्नड अ लॉट. वेरी गुड. प्राची सेस रेगुलर प्राणायामा एंड वॉक. Neelam says asanas. Good. Ujjwal says I'll do exercise and pranayama. All asanas. Rahul. Sindhu says regular breathing exercise. Very good. Sangeeta says less salt. Anu says all regular practice each day. Nishant says breathing and vajrasana. Sakshi says take care of water intake. Yes. Gautam says vajrasana. वेरी गुड, लवली कमेंट्स. सो ये आपने मेंशन किया है और आप इम्प्लीमेंट भी करोगे. ओके, ग्रेट. आई होप टुडेज सेशन वाज अ वैल्यू एड एंड आपने बहुत कुछ सीखा. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर योर टाइम एंड creating awareness on blood pressure topic. It was very informative and thank you once again. That's it for today. All the coaches, don't forget to invite your champions if you want to add value to their life. Okay, thank you so much. Namaste.